تلنگانہ پولیس نے عوام کو سوشل میڈیا پر سائبر فراڈ سے محتاط رہنے کی ہدایت دی۔ پولیس کا کہنا سوشل میڈیا پر کسی بھی اجنبی شخص سے دوستی کرنے سے پہلے احتیاط برتیں اور اپنی ذاتی معلومات، تصاویر یا ویڈیوز شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ پولیس نے خبردار کیا کہ سائبر مجرم اعتماد حاصل کر کے دھوکہ دہی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ ہر قدم پر چوکنا رہیں کیونکہ آپ کی اپنی ہوشیاری ہی سائبر فراڈ کے خلاف سب سے مضبوط تحفظ ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا کمشنر رنگاناتھ کے تبادلے کے احکامات جاری کرتے ہوئے چیف سیکرٹری کو ان کی جگہ کسی دوسرے آفیسر کی تقرری کی ہدایت دی۔ عدالت نے ہائیڈرا اور شانتا شری رام کنسٹرکشن کمپنی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ متنازع جائیداد میں مشنری اور عملے کے ساتھ داخل ہونا قانون کے خلاف۔ عدالت نے اس کارروائی پر اعتراض کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو قانونی طریقہ کار عمل کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سی آئی آئی نارتھرن ریجنل کونسل کے اجلاس میں رائزنگ تلنگانہ ویژن پیش کرتے ہوئے ریاست کو عالمی سرمایہ کاری کا بہترین مرکز بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تلنگانہ میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے $1 ٹریلین کی معیشت کے ہدف کے لیے جامع روڈ میپ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا حکومت صنعت، بنیادی ڈھانچے، اختراع اور روزگار کے مواقع کو فروغ دے کر تلنگانہ کو تیز رفتار معاشی ترقی کی جانب لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ రేవంత్ అన్న మూడు రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రేవంత్ అన్న నిగ్గదీసి అడిగే మొనగాడు। حیدرآباد کے آئی ٹی کوریڈور میں 14th آئی ٹی بونال تہوار مذہبی عقیدت اور ثقافتی روایات کے ساتھ منایا گیا۔ تلنگانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسوسی ایشن TITA کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں آئی ٹی شعبے سے وابستہ بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شلپا رامم سے چنا پدما مندر تک روایتی جلوس نکالا گیا جس میں رنگارنگ ثقافتی مظاہرے اور لوک رقص پیش کیے گئے۔ اس تہوار نے جدید آئی ٹی برادری اور تلنگانہ کی روایتی ثقافت کے خوبصورت امتزاج کی جھلک پیش کی۔ تلنگانہ کے سری رام ساگر پروجیکٹ میں سیلابی پانی کی آمد مسلسل جاری۔ حکام کے مطابق اس وقت پروجیکٹ میں 40,380 کیوسک پانی داخل ہو رہا۔ پروجیکٹ کی مکمل آبی سطح 1,091 فٹ جبکہ موجودہ سطح 1,071.20 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح پروجیکٹ کی مکمل ذخیرہ گنجائش 80.5 TMC جبکہ موجودہ ذخیرہ 25.353 TMC تک پہنچ گیا۔ حکام صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر مہیش کمار گوڈ نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھگوان شری رام کسی ایک سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی رام کے نام کو استعمال کر کے انتخابات میں فائدہ حاصل کرتی ہے۔ مہیش کمار گوڈ نے کہا رام پوری قوم کے عقیدے کا حصہ ہیں اور انہیں سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ بیان سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن گیا۔ ఐదేళ్లు పరిపాలన చేశారు। 5 ఏళ్ల తర్వాత మీరు ఈ దేశానికి ఏం చేశారు?
आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने अल्लूरी सीतारामराजू बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आला पवन कल्याण, वज़ीर नारा लोकेश, गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू, मरकजी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, रियासती वुज़रा और NDA इत्तेहाद के रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओपन टॉप जीप में सफर करते हुए कबाइलियों के रिवायती थनसा रक़्स का मुशाहिदा किया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अवामी जलसे से खिताब किए। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर-ए-आला पवन कल्याण ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि जब वो मोदी के खिलाफ तनकीदी बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि नई नस्ल शायद वज़ीर-ए-आज़म की मेहनत और जद्दोजहद से पूरी तरह वाकिफ नहीं। पवन कल्याण के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और मुसलसल मुल्क की खिदमत में मसरूफ रहे। నిజంగా ఆయన జంతర్ మంత్రులు అన్ని మాటలు అంటా ఉంటే నేను ఈ రోజున ప్రధానమంత్రి గారికి ఒకటే ఇస్తున్నాను, మిమ్మల్ని కొట్టే నాయకుడు లేడు ఈ భారతదేశంలో, రాబోడు. ఎందుకంటే మీరు పడ్డ శ్రమ, మీరు పడ్డ కష్టం ఎవరు తీసుకోలేరు. ఎన్ని బాధలు పడ్డా, ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నా ఈరోజు మనం గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. మన ఉత్తరాంధ్రకి ఎయిర్పోర్ట్లు వచ్చినాయి, ఇన్ని లక్షల పెట్టుబడులు వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి. కానీ मरकजी हुकूमत ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में 200 रुपए के कमी की। नई कीमतें हफ्ते के रोज नाफिज हो गई। हालांकि घरेलू सार्फिन को फिलहाल कोई राहत नहीं, क्योंकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर 202 रुपए सस्ता हो गया। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत में 209 रुपए की कमी। अब कोलकाता में कमर्शियल LPG सिलेंडर 2872.50 रुपए में दस्तयाब होगा। कमर्शियल LPG सिलेंडरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होटलों, रेस्टोरेंट, केटरिंग की खिदमत और दीगर तिजारती मुकामात में सबसे ज्यादा होता है। ऐसी सूरत में कीमतों में कमी की वजह से उन कारोबारों के ऑपरेटिंग अखराजात में कमी की उम्मीदें हैं, जिससे उन्हें माली राहत मिलेगी। फ्री कर देंगे, क्या दिक्कत है? सरकार के कदम से कितना राहत मिलेगी आपको? अभी तो आप सर 200 रुपये का जो घटाया है तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगा। अगर और थोड़ी घट जाए तो हमारे लोगों के लिए सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छी बात है, कम हो जाए तो बहुत बढ़िया। आगे से मैं भी कुछ करूँगा, आगे सस्ता करूँगा, हो जाएगा सस्ता तो और बड़ी बढ़िया बात है। सरकार के इस कदम से आप कितना राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत ही राहत है, कुछ राहत। कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्द हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले अकीदतमंदों के हौसले बुलंद। यात्रियों ने वापस लौटने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें भगवान और सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद है। लोगों का कहना है कि दहशतगर्दी के खौफ से यात्रा नहीं रुकेगी। अकीदतमंदों ने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि अमन व अकीदत का सफर जारी रहेगा। सब मालूम है, डरना नहीं है, हमको जाना है तो जाना है। आज 28 दिन हो चुके हैं, 27 दिन अभी भी बाकी है। हाँ, बाकी है तो जाना है, तो डरना नहीं है। वो धमका रहे हैं कि ताकि हम लोग का ग्रुप भड़क जाए, लेकिन भड़काना नहीं है। भोले बाबा पर विश्वास है, हम लोग का आत्म समर्पित है। हम लोग जाना है तो जाना है, किसी को डरना नहीं है। कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्द हमले के बाद PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आम लोगों को भारी सिक्योरिटी तैनाती की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इसके बावजूद सिक्योरिटी में खामियां सामने आ रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने उसे सिक्योरिटी नाकामी करार देते हुए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान हाई अलर्ट के बावजूद ऐसे वाकयात पेश नहीं आने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? और दूसरा, मेरी गुजारिश है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह अभी जो हमारा एक कांस्टेबल शहीद किया गया, उसके बाद हज़ारों लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर का नाम देके पकड़ा गया, उनको डिटेन किया गया। अभी भी जो अनंतनाग में जो दुकानदार हैं, उनकी
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुणे में लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने अजीम अदीब शायर और समाजी मसले की खिदमात को याद करते हुए उन्हें अवाम की आवाज करार दिया। अन्ना भाऊ साठे ने अपनी तहरीरों और फन के जरिए समाजी इंसाफ और महरूम तबकात के हुकूक के लिए नुमाया किरदार अदा किया, जिन्हें आज भी एहतराम के साथ याद किया जाता है। दिल्ली में E20 ईंधन के खिलाफ कौमी टाउन हॉल से कबल आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत की E20 पॉलिसी पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने मुनासिब तहकीक और मुताले के बगैर E20 ईंधन सार्फिन पर नाफिज किया। उनका कहना है कि इससे गाड़ियों की माइलेज कम हो रही और कई गाड़ियां खराब भी हो रही। ताहम हुकूमत की जानिब से इन इल्जामात पर फौरी तौर पर कोई रद्दमल सामने नहीं आया। तो इन्होंने कोई स्टडी वडी नहीं कराई सर, इन्होंने जबरदस्ती कर रखी। सर मिडिल क्लास पाई जोड़ के गाड़ी खरीदता है और उसके बाद अगर उस पे E20 थोप रहे हैं सरकार, तो क्या कहेंगे? तो गाड़ी भी खराब हो रही है, माइलेज भी खराब हो रही है, तो इसीलिए सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? सरकार का क्या इंटरेस्ट है? इसका मतलब E20 पेट्रोल तो सही नहीं है सर, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे प्राइस हाइक पे, क्योंकि बाकी दुनिया में प्राइस बहुत E20 का प्राइस लो है, यहाँ आज सारी बातें करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।